So rigid FOR, okay, inability to have flexibility of thought and action, inability to have an intellectual FOR. Fair enough. क्योंकि मैं बार बार पहले दिन से कह रहा हूँ वैल्यूएशन इज नॉट माय जॉब, सो सॉर्ट ऑफ एन एम्पैथी टू बी इन देयर शूज. सो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं. एक I was thinking and I said, like, different organization where I worked and I talked to the gray workforce, the graying workforce. Gray implies white in the hair. So if the future there would be a 60-year-old guy working with a 25-year-old guy like you. This is the future. डाइवर्सिटी जेंडर की नहीं होती. डाइवर्सिटी, सबसे बड़ी डाइवर्सिटी तो डाइवर्सिटी ऑफ आइडिया होती है, उसके बाद डाइवर्सिटी जनरेशनल गैप. तो मुझे ये कुछ चीजें नजर आई थी घरों में भी. और चलो घरों में मैं नहीं जाता, बट ऑर्गेनाइजेशन में क्या ऐसा होता है कि ऑल ओल्डर पीपल आर लेस वांटेड. आई एम टॉकिंग अबाउट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, कटिंग एज ऑर्गेनाइजेशंस like Telenor, like Google, like Facebook, like Standard Chartered. They've reached at the top, a sort of plateaued. See? एक होता है एज रिलेटेड, लाइक जो स्लैबिंग है, आपको आप नेक्स्ट ग्रेड में चले गए, BPS है जो भी है, आपको पे मिलेगी. एक होती है परफॉर्मेंस रिलेटेड. They are old, so they cannot, they lack energy. They can be good role models, they couldn't be good mentors, but they cannot, they don't have that cognitive speed or ability to compete with the young people. Young people are like children, they are full of energy. A child can run for 24 hours without tiring. Of course they are stagnated. They have spent 30 years in an organization, 40 years in an organization. Now they can apply to a new organization. They are blocked. A lot of, मैं बहुत दफा कहता हूँ कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, ये मतलब केसेस कराने का. सर आपको तो पता ही होगा, आप 12 साल से तो पढ़ा रहे हैं. What sort of an answer is that? So many. राना साहब आपके साथ कभी हुआ है क्या, लोग आपको कहें सर जी आप इतने सीनियर हैं, आपको तो पता ही होगा. लेट मी थिंक सर, कहा ही होगा किसी ने सर. या आपने किसी लेकिन सर सीनियर को कहा है बहुत सीनियर है तो. If there is a problem in the organization, किसी को कुछ नहीं पता. Everybody needs to think together and hash it out. But many a time senior लोगों को कहा जाता है यार इनको ना बुलाओ, इनको तो पता ही होगा. ठीक. So they are supposed to know. Like we think of our parents, they're supposed to know. They don't know. Like मैं अपने वालिद साहब के पास जाऊँ, आप कितनी एज 70 years हो गए हैं, you should supposed to know how to fight coronavirus. What sort of an argument is that? It's a new thing. Nobody knows anything, be it a grey workforce or a young workforce. But many a times these, again, it's an, this is my personal observations which I've written down. You can totally disagree, but many a times I think that it's not that they are unreasonable, it's because they are frustrated. And why they are frustrated? Because of these reasons. You can agree with them or disagree with them, or have, or you can present a counter argument to them. It's up to them, up to you. ठीक है जी. So दो चीजें मैंने कहा था एबनॉर्मल फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट है. रोल ऑफ पनिशमेंट. A frustrated person, if you punish them, of course आपकी default setting punishment की होगी, like Zhang, because on the face of it makes no sense. Second is older employees. ठीक. मैंने जो देखा है ये उसमें ये होता है like parents या और ग्रे मतलब they cannot change because so in many trainings people say sir हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे जो सीनियर हैं ये जो हैं ये फ्रस्ट्रेट होकर रिजेक्ट हो चुके हैं. मैं कहता हूँ उसका मेरे अगेन दिस इज आई कैन बी टोटली रॉन्ग. मैं कहता हूँ कि ऐसा आप हमेशा ये देखना कि वो पहले पोजीशन, रिमेंबर
सेपरेट पोजीशन फ्रॉम द पर्सन। पोजीशन पहले लेंगे और रीजन बाद में देंगे। सर सेक्सुअल हरासमेंट, मी टू, ये एक इशू है, इस पर ट्रेनिंग करा दें? नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्यों सर? यार वो ये ऐसे ही ड्रामा है। सो इफ अ पर्सन टेक्स अ पोजीशन फर्स्ट and then gives justification, it means the person is rigid, and this rigidity can have many reasons, but one reason could be because they are frustrated, because they have been passed over, because they are given less attention, because they are supposed to know everything. See? However, the other side is, if a person is not rigid, he would first give the reasons, like, okay, do we have any Me Too things? What is the ratio of our male to female employees? Do we even have any female employees? Sir, एक है, वो भी contractual है. Okay, then no, we don't need it. एक छोटा सा 20 मिनट का रिफ्रेशर वीडियो सबको भेज दो, ठीक? दिस डिस्टिंक्शन अपने इर्द गिर्द भी लोगों को देखें कि क्या वो पोजीशन पहले लेते हैं, वही एटीट्यूडनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्या वो पहले पोजीशन लेते हैं, पहले ओपिनियन देते हैं और फिर जस्टिफिकेशन देते हैं, या पहले वो अपनी रीजनिंग करते हैं और फिर पोजीशन लेते हैं? दिस इज द मूट पॉइंट। रेजिग्नेशन, ये जो तीनों सिम्टम्स थे, मैंने कहा था आपको, ये लेबोरेटरी टेस्टेड है, वेरिएबल उसमें अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये जो और ये लेबोरेटरी टेस्टेड है। और जो साइकोलॉजिकल रेजिग्नेशन है या रेजिग्नेशन है, ये लाइक क्रॉनिक बर्नआउट की तरह है, क्रॉनिक स्ट्रेस में ये इंडिविजुअली इन आइसोलेशन प्रेजेंट करता है, ठीक? और इसकी क्लिनिकल स्टडीज नहीं है, इसकी फील्ड स्टडीज हैं। डिस्प्लेस्ड पीपल, वॉर डिस्प्लेस्ड पीपल, पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड इन फैमिन एंड हंगर। देखें व्हाट इज दिस, मैं अपनी मुल्क में भी वैसे ये देख रहा हूँ, वो लाइक अफेक्टिव फ्लैटनिंग। साइकोलॉजिकल रेजिग्नेशन इज लाइक हैंड्स अप, given up, nothing is all emotions are gone, every aggression is no, every aggression is taken out, there's no fixation, nothing, everything is just gone, is affective flattening. People become, so to speak, neutral. There are no use trying to do anything. How many times you have heard in your organization, in your family, or in your country with your police, इधर कुछ नहीं हो सकता, कुछ बदलने वाला नहीं है, यूं यार तू ऐसे ही मेहनत करी जा रहा, कुछ नहीं होगा यहाँ। How many times have you heard these things, words, lines like this? Many times, sir. These lines are given by people who have psychologically resigned, who have basically given up on life. Now, why I am talking about that? क्योंकि अगले कल की क्लास में ऑन बोर्डिंग, सोशलाइजेशन, न्यू हायर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मेरी याद रखना, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, ठीक? मोहसिन, कयूम, मोहसिन, वकास नहीं आ जाया? सर आया हुआ है सर, क्लास ऑनलाइन है, क्लास ऑनलाइन ही है, चेहरा नहीं करा क्लास में। अच्छा, मेरा ख्याल है इसकी कोई लिमिटेशन है, 3 ही दिखा सकते। चलो ठीक। Everybody kindly please ask, give Rabia a message. She is not feeling well. दुनिया में आप देखेंगे वैसे तो है, लेकिन इट्स एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन से एक चीज बता रहा हूँ। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, वैसे कई तरह के लोग होते हैं, लेकिन एक जो डिप्रेशन लेते हैं, एक जो एंजाइटी लेते हैं, एक जो स्ट्रेस लेते हैं, एक जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। दूसरे वो हैं जो डिप्रेशन देते हैं, उनको मैं डिप्रेसोजेनिक्स कहता हूँ, जो स्ट्रेस देते हैं, जो फ्रस्ट्रेशन देते हैं। ज्यादा बाज़ औक़ात आपको ऐसे लोग अपने घरों में ही अपने से मुराद लोगों को घरों में ही मिल जाए, तो खुद सुकून से खाना भी खाते हैं, उनको नींद भी आ जाती है, उनको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगले बंदे का वो डिप्रेशन इतना दे देते हैं कि वो कहता है कि अच्छा ठीक,
आज रात तो दवाई के बगैर नींद नहीं आई। ऑर्गेनाइजेशन में ये क्यों रेलिवेंट है? न्यू हायर साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, कल डिटेल में बात करूंगा। आप जो फ्रेश विद एनर्जी, कयूम साहब है, राबिया है, वकास है, ठीक है, राना साहब है, ओके आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू डू समथिंग, और आपके कोच कहेगा लेट्स से देयर इज नो फॉर, क्या कर रहे हो, क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो, इधर कुछ नहीं होने वाला, इधर कुछ बदलने वाला नहीं, ऐसे ही कोशिश करते जा रहे हो, तो खुद तो वो डिप्रेस हो जाने के, आपको भी डिप्रेस कर देंगे। आपका सारा इंथुजियाज्म, आपका सारा एक्साइटमेंट, दिल किल इट। ठीक, सो ओरिएंटेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे लोगों को लाएं, रोल मॉडल्स या कोचेस को, जो कि जो कि जो कि लोगों की एफिकेसी बिल्ड करें, लोगों का मोरल बिल्ड करें। चलें आप ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ऐसे लोग ना लाएं जो लोगों को ये कहें, ओ यार अच्छा ये ओरिएंटेशन तो हो रही है, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, होना शोना कुछ नहीं है, हैंडबुक दे दी है तुम लोगों को, ये इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। बाय द वे, आप में से आपको हैंडबुक मिली थी? सर किस चीज की सर? हर ऑर्गेनाइजेशन में ओरिएंटे सर? हर यूनिवर्सिटी की भी हैंडबुक, नहीं हर सर, कुछ नहीं मिला। नहीं सर, नहीं नो मिली। सर, कुछ भी नहीं मिला सर। नहीं सर। हैंडबुक, अच्छा चले, बहरहाल लास्ट में हैंडबुक भी देते हैं लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। क्यों नहीं पढ़ता? कुछ उसको उनके एक सोशलाइजेशन आप कर रहे होते हैं फॉर्मल, एक सोशलाइजेशन है जो उनके सीनियर कर रहे होते हैं इनफॉर्मल। वो कहते हैं वो यार कोई जरूरत नहीं है हैंडबुक की। एक ऑर्गेनाइजेशंस में तो आपको हैंडबुक मिली होगी ना ओरिएंटेशन। जी सर, एक बुकलेट देते हैं स्टार्ट में कि स्टडी हाँ करने जी, हैं वो हमारे वो ये। उसको उसको ऑर्गेनाइजेशनल हैंडबुक कहते हैं। सुनिए, आपने पढ़ी थी? नहीं सर। बट आई डोंट ब्लेम यू बिकॉज मेनी पीपल सेड यार कोई फायदा नहीं, क्या जरूरत है, बस ठीक है ऐसे ही, मेरे से पूछ लेना क्या जुगाड़ करनी है, मैं करवा दूँ। ठीक, यस सर। यस। सो सारी फॉर्मलाइजेशन, सारी सोशलाइजेशन, दैट्स मनी डाउन द ड्रेन ना। अब इसमें ये हम कवर कर चुके हैं। Managing frustration as a manager, your first rule is to distinguish or make a distinction. Is the behavior goal oriented problem solving or frustration induced? It's an uphill task because frustration induced behavior on the first stance makes no sense. Use punishment only in goal oriented behavior. Now ये हम कवर कर चुके थे, इसके बाद खत्म है। ये लास्ट बात है जो स्टोइक बात है। अगर आप इंटरेस्टेड हुए हैं कहीं तो मैं आपको आज भेज दूंगा स्टोइक व्यू, एक सिंपलिस्टिक व्यू है शॉशैंक रिडेम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई नो आजकल आप लोगों पे वर्कलोड है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको एक छोटी सी 10 मिनट की वीडियो भेज दूंगा। एक मूवीज को यूज किया गया टू गिव यू, मैंने कहा था ना, सम ऑब्स्टिकल्स कैन नॉट बी ओवरकम। ठीक, इज एन ओल्ड एज, चले मैं डाइग्रेस कर रहा हूं। देखें जी, ये एक चीज है कंस्ट्रक्टिव व्यू पॉइंट। ठीक, इसमें मैं कुछ बातें करने वाला हूँ। ज्यादातर मैंने स्टोइसिज्म से, स्टोया से, मार्कस ऑरेलियस से कुछ डिराइव किए हैं, विक्टर फ्रैंकलिन से। सो इट्स एन अमलगमेशन। ओके, I'm gonna discuss, I'm gonna talk about that, and then you can have your take on it. This is our last point. देखें, what is problem solving behavior? Is to look for alternatives. What sort of alternatives? The alternatives that are not already there in your repository or mental library, right? ऐसे ही है ना? जी सर। However, वो अल्टरनेटिव उस बॉक्स, वो रिपोजिटरी से बाहर जाने के लिए ज़रूरी है, उसमें एक रोड ब्लॉक है। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए, फ्रस्ट्रेशन ने आपको ग्रिप में ले लिया, आप एंगर में आ गए, तो वो एक रोड ब्लॉक बन जाएगी। वो रोड ब्लॉक बन जाएगी आपको उन ऑल्टरनेटिव्स, उस साइकिल, उस वेरिएबिलिटी ऑफ थॉट और एक्शन में जाने से। एंग्री नहीं होना। ठीक,
key takeaway. Anger is a roadblock to finding an alternative. Now, thing is, अब एक अजीब सी बात लगेगी आपको, एक वेल एडजस्टेड, मेंटली वेल एडजस्टेड, satisfied, I'm not saying happy, satisfied, content person knows that life is hard, people are unreasonable, so he or she accepts that every now and then I'll be a roadmap, I'll be a doormat, I'll be a punching bag, and I'll accept it. एक दफ़ा साल में मैं अपनी वाइफ का पंचिंग बैग हूँगा, एक दफ़ा 6 महीने में मैं अपने बॉस, पैटर्न नहीं बनने देना। दूसरी तीसरी दफ़ा अगर हो रहा है तो उसको रोको, लेकिन पहले मतलब इससे जैसे कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस में था, सो ये है कि लिसन, यू डोंट every time, you don't need to assert, okay, I am in power, I know, and you don't have to be that dramatic about it. देखो, इमेजिन करो एक एलियन है, उसको कुछ नहीं पता, ठीक, वो देख रहा है मुख्तलिफ वाइकेरियस कंडीशन में, एड्स, मूवीज, ये वो सब कुछ, फिर वो एक कोर्ट रूम में आ जाता है। अब कोर्ट रूम में वो देख रहा है 2 लॉयर्स हैं, वो बोल रहे हैं, वो हाथ हिला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। कटहरे में जो डॉक में क्रिमिनल है वो भी बोली जा रहा है। जज जो है वो खामोशी से बैठा हुआ है। तो एक एलियन जिसको कुछ नहीं पता, वो क्या समझेगा कि इस रूम में सबसे वीक आदमी कौन है? जज। तो जो नहीं बोल रहा, जज ना, हाँ, बट इन रियलिटी ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गाय, just because he's not showing it, ठीक? So no, you don't need to prove that you are a man to your wife every now and then, or you are the boss to your children, like you, Samurada, anybody, myself, or so इस बात का मतलब ये है कि every now and then, well left, समझते हैं आप क्रिकेट में, just well left. So if a student criticizes me, I say okay, fair enough, your opinion. You don't need to justify to your work. If you know your job, if you are competent, okay, you don't need to justify to every criticism of your co-workers or your junior says, sir, आपका management style बुरा है, and you know, so you say, okay, क्या what, ये guide me, नहीं सर, बस वैसे ही बुरा है, जैसे वो आपकी मीट एक्सपेक्टेशन, आप कहते ठीक है, सही है, मैं बुरा हूँ, I don't have time of the day to engage with you. Or a wife says, okay, you don't care for me, you say, okay, fair enough. A boss. So children, co-workers, friends, spouses, bosses, you don't have to justify yourself. Again, this is my point of view, from especially from stoicism की बहुत criticism है। मुझे अभी तक ये feedback नहीं आई कि आप वो वीडियो में interested हैं या नहीं, ठीक? So every now and then आप लोगों को scapegoat बनाया जाएगा, accept it as a reality of life, like death and taxes. अब मैं आपको बताता हूँ कि एक दफ़ा एक स्टूडेंट आया मेरे पास, प्रोबेशन, वही परसेप्चुअल डिनायल, एक प्रोबेशन लगी, दूसरी लगी, अब उसके 4 साल ख़त्म हो रहे थे और वो विड्रॉल, इट वाज अ ट्रेजिक सिचुएशन। सर मुझे अगर मेरा सी आया, अगर आप भी कर दें तो मेरे बचत होगी। मैंने कहा आप कितने सब्जेक्ट हैं? सर 5 सब्जेक्ट। मैंने कहा कितने साल से पढ़ रहे हो? 4 साल से। मैंने कहा क्या मतलब सिर्फ एक तो मेरे पे रिलाई कर रहे थे? नहीं सर, बस अगर आप ये कर दें। मैंने कहा मैं एक स्कीमा बनाता हूँ, आप लोगों के साथ चूंकि मिड नहीं हुआ, मैं वही ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो है ना, मैं एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाता हूँ, वो शेयर करता हूँ, वो बोर्ड पे लिखता हूँ, और फिर हर बंद मैं कब पेपर शोइंग में आई वाज द ओनली गाय जो लोगों को कहता था आपस में एक दूसरे के पेपर दे, फिर मेरे पास अगर किसी और बंदे को उस क्राइटेरिया के आप, ठीक, सो आई एम डाइग्रेसिंग अ बिट। हुआ क्या, मैंने कहा यार ये सारे सब कुछ तुम्हारे सामने एक्सेल शीट खुली है, मैक्स आई कैन डू कि मैं तुम्हारा एक क्विज में डाल दूं 2 मार्क्स, फिर भी तुम C+ में जाओ।
खैर ये बात होती रही about 45 minutes 50 minutes and then he realized कि मैंने कहा I feel sorry for you, this is a tragic situation but you have brought it upon yourself. The best I can do is C plus. He said sir C plus है तो मेरा कुछ नहीं होगा, मैं withdraw हो जाऊँ, अब मैं क्या कर सकता. So what he did was जब वो कमरे से मेरे रूम से निकला उसने जितना भी उसमें जोर बचा था उसे दाड़ से दरवाजा जोर से. Scapegoating, principle of availability, aggression on inanimate object. अब मेरे पास दो रास्ते थे, एक वही मेरी बेइज्जती हो, मेरे कमरे मैं उसके पीछे जाता उस पर ओए तुमने ये क्या किया, ये तो तुमने. बट दैट इज वन व्यू. अनदर व्यू इज कि यार वो बेचारा ऑलरेडी ट्रेजिक सिचुएशन में है, उसका जोर एक दरवाजे पे निकल रहा है, दरवाजा ही बंद किया, ठीक है, उसका थोड़ा कैथारसिस हो गया, मैं उसके पीछे क्यों जाऊं. ठीक, I have better things to do except justifying or pulling ranks left, right and center. ठीक, so I didn't go. मैंने कहा ठीक है चला गया, कोई बात नहीं, मैंने सिगरेट लगा के रिलैक्स करके अपना काम शुरू कर दिया. वो फ्रस्ट्रेटेड था बट जो हरकत उसने की इट वाज अ गुड चांस कि मैं भी उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर सक इन हो जाता. आई रिफ्यूज टू डू दैट. जो मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट जब मैं लोगों को कंस्ट्रक्टिव व्यू पॉइंट या स्टोइसिज्म सिखा रहा होता तो मैं बताता हूँ कि आई डोंट डू. पीपल ऑफन थिंक कि ये बड़ा सेंटली एक्ट है, ये बड़ा नाइस. नो 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 सर, आई हैव नो इंटरेस्ट इन बीइंग अ नाइस. आई डू इट प्योरली एज एन आई डू एक्ट ऑफ सेल्फिशनेस. दिस इज नॉट एन एक्ट ऑफ जेनरोसिटी. मैं कोई उसके साथ नाइस नहीं बनना चाहता, मैं अपने आप के साथ नाइस होना चाहता. I don't want to be stuck into that his world. So many a times people would say, especially this emotional intelligence people, they talk things they don't even know. No. A lot of things in emotional intelligence you do it for very very selfish reasons, not as a because ED or generosity. मैंने कहा था ना, any virtue push to the limit becomes a vice. ये एक एक्चुअल केस मैं आपको बता रहा हूँ. टू बैक के ये कैसे मैंने शायद आपको डिस्कस भी किया था. 3 people were up for promotion, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी. सो एक बंदे को प्रमोट होना, पर्सन ए को प्रमोट कर दिया. उन्होंने सोचा कि यार नेक्स्ट ईयर या फिर आफ्टर 6 months विल लुक एट पर्सन बी. बट जब पर्सन बी को पता लगा कि पर्सन ए प्रमोट हो गया तो उसने वो फ्रस्ट्रेट हो गया. फ्रस्ट्रेशन में उसने सारे एग्रेशन, रिग्रेशन, एबनॉर्मल सारी सिम्टोमोलॉजीज, साइकोलॉजिकल रिग्रेशन, एब्सेंटिज्म, रिडक्शन सब कुछ किया. साल बाद दोबारा मीटिंग हुई, या फिर हो सकता है 2 महीने बाद मीटिंग हो गई. क्यों? क्योंकि जो जैसे ही वो उसको प्रमोट किया, उसको एक और कंपनी से कॉल आई, उसको बेटर ऑफर आई, वो चला गया. ओके, यू हैव अ टैलेंट पाइपलाइन, आपके पास बी और सी है. आप दोबारा लीडरशिप बैठी, उन्होंने कहा अच्छा वो भाई ये तो निकल गया, अब क्या करें. बी, एक बंदा कहेगा सर मैं बी का डिपार्टमेंटल हेड हूँ, हमने पहले तो सिलेक्ट किया था बट पिछले कुछ 2 महीने से वो अजीबो गरीब बिहेव कर रहा है, मुझे नहीं लगता, समथिंग हैज हैपेंड, आई थिंक बी को अब प्रमोट नहीं करना चाहिए, सी वुड गेट द प्रमोशन. सो बहुत दफा आपको ये सारे बिहेवियर्स नहीं करने. क्यों? बिकॉज ऑफ प्योरली सेल्फिश रीजन, not because you want to become an ED or Mother Teresa. ठीक, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इन एडिशन टू दैट द ओल्ड सारे काउंसलिंग और सोशल सपोर्ट, लाइक जितने वो स्ट्रेस ग्राइब सेशन, टाउन हॉल मीटिंग, कन्फ्रंटेशनल मीटिंग, जितने वो होल्ड ट्रू करते हैं स्ट्रेस में, वो फ्रस्ट्रेशन में भी करते हैं. जो चीज़ें नहीं थी वो मैंने यहाँ डाल दी हैं, बाकी वो भी हैं. बिकॉज ये ओवरऑल मेंटल हेल्थ के मिलियू में ये सारी चीज़ें आती हैं. विद दिस आई एम डन विद मेंटल हेल्थ.
अगर जून चला तो मैं जॉब एलिनेशन और बर्न आउट पे भी आपको सिर्फ घंटे का सिर्फ एक टेस्ट दूंगा कि आप बिल्कुल ग्रीन बिहाइंड द ईयर ना, आपको कुछ आइडिया हो, कोई बंदा पूछ ले कि जी बर्न आउट क्या है, तो ठीक। सो ऑल द बेस्ट जी। एनी क्वेश्चन? सही है सर, बस रिपीट करेंगे इंशाल्लाह इसको दोबारा। ठीक है, स्लाइड्स में अच्छा पक्का हो जाएगा जी। कि यूँ मुझे टेक्स्ट कर देना, अगर आपको वीडियो चाहिए हो मुझे टेक्स्ट कर देना। जी सर। मुझे अच्छा नंबर 2 आज मुझे आ जाएंगी सारी असाइनमेंट्स। अगर लास्ट मिनट में किए हैं तो प्रॉब्लम, मुझे पता चल जाएगा, बस वो हमने सारा जो वो बहुत वो एक लाइक दैट गाय, इट्स एन आर्टिकल फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, लेकिन वो बहुत इन डेप्थ है, बट आई होप आपने वो जब वो असाइनमेंट की होगी तो री इन्फोर्स हुए होंगे सारे जो हमने स्टेप्स किए थे मैरी पाकर फॉलो के। जी सर। रोजा लग गया है। So नंबर 2 जी सर। असाइनमेंट्स, नंबर 3 अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस वीडियो में स्टोइसिज्म की, वो नंबर 4 जो असाइनमेंट 5 है उसकी डेट में डाल दूं 2 जून ना? जी सर। जी सर। अच्छा, असाइनमेंट 2 और प्रोजेक्ट अभी मैं कुछ नहीं कहता, कहीं सबसे डिस्कस करो, ठीक? जी सर सबसे सही है। इनपुट लो, अभी आप थक गए हो, तो सबसे डिस्कस करने के बाद मुझे आज रात या कल सुबह, ठीक, या दोपहर को, जब भी सही है तुम, सर। ठीक, जब भी तुम सबसे इनपुट लेके सबसे रीजनिंग लेके 2 चीजों में तुमने मुझे बताना है, बिकॉज मैंने फाइनल प्रोजेक्ट भी अपलोड कर दिया है। बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट है, आप उस प्रोजेक्ट से बहुत सीखोगे अगर आप उससे जस्टिस करोगे, ठीक। एक कमेंट्री आपने लिखनी है, 6 एक्सपर्ट कमेंट्रीज मैंने डाली हैं एज अ गाइडलाइन, उनको आप देख के आप उनसे लर्न करोगे कैसे लिखते हैं एक 1 पेजर, एक आर्टिकल, एक अच्छे केस को, ठीक। और जो असाइनमेंट 5 है वो उसकी, ये 2 आपने मुझे कम्युनिकेट कर दो, ठीक। जी सर सही है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर बॉयज एंड गर्ल्स। आज सिर्फ राबिया नहीं थी, सब लोग काइंडली आस्क, अब उससे पूछें, उससे बात करें कि जी हाउ इज शी डूइंग, इज देयर एनीथिंग एनीबॉडी कैन डू फॉर हर, और मेरी तरफ से भी कहीं काइंडली आप पूछ लीजिएगा इफ यू डोंट माइंड, सही है। ठीक है ना? सही है Thank सर। you. आई होप इट्स ओके। नॉट समथिंग सीरियस, या? यस सर। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच बॉयज एंड गर्ल्स। थैंक यू सर। हाफिज। शुक्रिया। हाफिज। सर अल्लाह।